Hello students. So last session we started with introduction session, like introductory session that I had, where we discussed a few exercises that this particular book Word War Made Easy has given you. I discussed them at length. Probably I hope that you must have gone through the whole video and acquired as many words as possible from that video. So today, let's begin with session 1 of this particular book that begins at page number 32. What does it say? When you say session number 1, it has discussed around 10 words, 10 important traits of human. That's what we're saying. And along with this, there are many words that we really need to learn now in this exercise. Let's begin. When it says every human being is, in one way or another, unique. Everyone's personality is determined by a combination of genetic and environmental factors. Okay, this is always the word determined. No, it is determined. Right word is determined, but we always have been speaking like this, determined. So kindly correct your pronunciation. Everyone's personality is determined by a combination of genetic and environmental factors. यानी हर एक की लाइफ जो होती है वो उसके जेनेटिक यानी जो उसको पेरेंट्स से मिला होता है या उसकी जो एनवायरनमेंट से होती है तो उसकी पर्सनैलिटी अकॉर्डिंगली डेवलप होती है। ये थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है कि हमारे चारों तरफ कौन है या हम किस फैमिली से आए हैं। लेट्स एग्जामिन 10 personality types. Okay, he says that let's talk about 10 different personality traits. Okay, one of them might chance be your very own. Now you say the word very own. Now you can see this word here. If I say this very own, now you understand kai bari we say that on the very Sunday I went to Ahmedabad. So on the very Sunday matlab on the same we say. I want the very book. The very at times is used for the same kind of thing. So one of which might chance be your very own. जो आपकी अपनी है वैसी सी हो सकती है. This is what it is saying. Okay. Now when we say personality types, we say at times we use the word traits for them. This is also the kind of peculiar habit that you have, peculiar type you have. So we call them traits as well. That result from the very culture, growth, family background, and environment interact with heredity, you see. And of course, we begin not with the words, but with the ideas. Simply you find many books in the market जिसमें क्या होता है भाई इधर वर्ड दे रखा है और उधर उसके चार सिनोनिम दे रखे हैं, वर्ड दे रखे हैं, एंटोनिम दे रखे हैं। तो क्या होता है हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं। बट हाँ, इस बुक को पढ़ते पढ़ते आपको वर्ड ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा फॉर श्योर, दैट इज 100%. ओके, लेट्स सी व्हाट इट सेज. We say the first thing he talks about is he wants to discuss this particular trait, particular personality type, me first. यानी कुछ ऐसे लोग जो कहते हैं कि मुझे पहले मिले, बाकियों को मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता। ये me first वाला जो trait है वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं. Your attitude to life is simple, direct, and above board. Every decision you make is based on the answer to one question. यानी आदमी जो भी आप करते हैं लाइफ में, जो भी आप काम करते हैं उसके लिए करने से पहले आप चीज जरूर ध्यान रखते हैं या पूछते हैं क्या व्हाट इज इन इट फॉर मी, मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों करूं. आपका सोचना ऐसा है. इफ योर सेल्फिशनेस, ग्रीड एंड रूथलेस डिजायर फॉर सेल्फ एडवांसमेंट हर्ट अदर पीपल, दैट इज टू बैड. फिर मैंने आपको समझाया कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आप इतनी अपने सेल्फ एडवांसमेंट के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो गलत बात होती है. तो आपने जवाब दिया दिस इज अ टफ वर्ड पैल, dog eat dog and all that, and I for one am not going to be left behind. आपने कहा यार इतना मारा मारी है दुनिया में, इतना dog eat dog kind of competition है, मैं तो पीछे नहीं रह सकता यार, मुझे तो चाहिए. यानी आपकी सोच ये है कि मुझे मिल जाए, बाकियों के बारे में बाद में देखेंगे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट मेरा कंसर्न है कि भी मुझे मिले, जो आज की डेट में हम सभी ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं. ठीक है. सो दैट इज व्हाट द एटीट्यूड इज मी फर्स्ट. यानी जहां पर आप अपने लिए कंसर्न होते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते, वे वाला इस तरीके के जो पर्सन होते हैं उसको हम ईगोइस्ट बोलते हैं, उसको हम सेल्फिश बोलते हैं. तो वी से द वर्ड ईगोइस्ट हो जाता है, दैट इज द पर्सन इज सेल्फिश हो जाता है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक वर्ड हम बात कर रहे हैं ईगोइस्ट,
तो व्हेन यू से द वर्ड ईगोइस्ट, तो ईगो कहाँ से आया? अगर आपको समझ आता है तो यहाँ पर वर्ड है ईगो और आ रहा है इस्ट। आप कभी बाद में जाके पढ़ेंगे कि वो बोलता है कि ईगो का मतलब होता है सेल्फ, और इस्ट का मतलब है, जब भी किसी वर्ड के पीछे एक इस्ट आएगा इसका मतलब वो वहां पर एक्सपर्ट को इंडिकेट करेगा। तो यानी अगर आप ईगो के एक्सपर्ट हो जाते हैं, यानी सेल्फ इंपॉर्टेंस देते हैं, ईगोइस्ट हो जाते हैं, ओके, जिसे सेल्फिश बोलते हैं हम लोग, ठीक है, स्वार्थी जो हो जाता है वो ईगोइस्ट है, ओके। नाउ लेट्स सी, जो मैंने मार्क किया, मैंने यहां पर वर्ड मार्क किए यूनिक, मैंने वर्ड मार्क किया अबव बोर्ड, यानी यूनिक क्या है? अगर किसी को नहीं आता, सी जब आप पढ़ रहे हैं ना बुक को, तो आपको पूरा पढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। लेकिन जो वर्ड मुझे नहीं आता, सब कॉन्शियस से मालूम होता है कि यार ये पूरा एग्जैक्टली नहीं पता, तो मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। तो यूनिक वर्ड मुझे लगा कि यार ये शायद मुझे ना आता हो, आइडिया तो लग जाता है पढ़ करके व्हाट इट इज अबाउट, तो मैंने यूनिक मार्क कर लिया। तो यूनिक का मतलब है बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, दुनिया में एक ही एक हो, यूनिक हो जाता है। भाई ताजमहल भी से यूनिक ब्यूटी, अनयूजुअल काइंड ऑफ हो जाता है, दैट इज वर्ड यूनिक हो जाता है, ठीक है। कई बार हम उसको बोलते हैं एक्सोटिक भी बोलते हैं, अगर आपने सुना हो वर्ड तो एक्सोटिक हो जाता है। Now above board, there's one word given there is above board हो जाता है। above board means frank है, honest है, to call a spade यानी मुंह पर बोलने वाला है, above board होता है। यानी अगर आप देखेंगे तो मीटिंग में आप बोर्ड के ऊपर रखकर जो कुछ भी करेंगे, आप नीचे छुपाकर कुछ नहीं करेंगे, आप अबव बोर्ड है, यानी आप बड़े फ्रैंक पर्सन है, मुंह पर बोलने वाले हैं। तो उसने क्या बोला था, योर एटीट्यूड टू लाइफ इज सिंपल, डायरेक्ट एंड अबव बोर्ड, मतलब आप बड़े ऑनेस्ट टाइप के हैं, आप छुपाकर कुछ नहीं करते, आप स्ट्रेट अवे बोलते हैं। तभी तो आपने बोल दिया था कि यार मुझे भी चाहिए, मैं क्या करूं, सबको इतना कंपटीशन है। तो यानी आप इस तरीके के पर्सन है। तो रूथलेस क्या है? रूथलेस मीन्स क्रूअल, मर्सीलेस है, दैट इज व्हाट वी कॉल इज रूथलेस हो जाता है, ओके। यू नीड टू नो द वर्ड क्रूअल है, मर्सीलेस है। एंड देन वी से पैल, पैल इज अ फ्रेंड, बडी, चम, जो भी हमारा चम होता है ना, चम जो बड़ा क्लोज फ्रेंड को बोलते हैं, चम इज ऑल्सो द वर्ड, चम जो होता है वो वेरी क्लोज फ्रेंड हो जाता है, ठीक है। एक वर्ड अगर आपने सुना हो तो वो बॉसम फ्रेंड हो जाता है। तो यहाँ चम हो जाता है, बडी हो जाता है। देन वी से डॉग ईट डॉग, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डॉग ईट डॉग? डॉग ईट डॉग मीन्स कट थ्रोट कंपटीशन हो जाता है, यानी दूसरे वाले को मार के निकल जाए आगे, वैसे वाला। तो बारबरस हो जाएगा, बहुत ही क्रिमिनल टाइप का, सिवियर हो जाता है। वी से लाइक दिस ओनली, दैट इज कट थ्रोट कंपटीशन है, बारबरस है, सिवियर है ना, कट थ्रोट कंपटीशन होता है। तो यहाँ पर बोला डॉग ईट डॉग है, जरूरत पड़ने पर कुत्ता कुत्ते को भी खा जाता है, ऐसी वाली सोच के दुनिया चल रही है। तो आपने कहा कि भैया मेरे दोस्त, इतना कंपटीशन है जो डॉग ईट डॉग का है या कट थ्रोट कंपटीशन है, तो मुझे भी तो चाहिए, मैं पीछे नहीं रहूंगा। अगर आप इस तरीके की सोच के हो, बारबरस नेचर के हो, बड़ी सीवियर सोच रखते हो, किसी के लिए कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ अपने लिए कंसर्न है, तो आप क्या हुए? आप इगोइस्ट हुए, आप क्या हुए? आप स्वार्थी हैं, वो ऐसा कहना चाहते हैं, ओके। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स सी व्हाट इट सेज। द नेक्स्ट इज द हाइट ऑफ कंसीट होता है, द हाइट ऑफ कंसीट होता है। कंसीट, अगर देखो जैसे वर्ड नहीं पता था कंसीट, तो मैंने अगर, हालांकि मैं नेक्स्ट पैराग्राफ करूंगा तो आप आगे चले जाओगे, कंसीट नहीं पढ़ोगे, लेकिन कंसीट को अंडरलाइन कर लीजिए। तो वैसे मैं आगे लिखूंगा बाद में, लेकिन हाँ, कंसीट का मतलब होता है जब एक्सेसिव प्राइड हो जाती है, जब अब दिमाग पर चढ़ जाता है, किसी को लगता है भी मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरे ही सब, जो मेरे से ऊपर कोई नहीं, आप अपने आप को सबसे सुप्रीम वैल्यू देने लग जाते हैं, तो कंसीटेड हो जाता है, बहुत ही ज्यादा घमंडी टाइप का हो जाता है। द हाइट ऑफ कंसीट होता है। नाउ लेट्स सी, हैव यू हर्ड अबाउट ऑल द मनी आई एम मेकिंग? तो आपका फ्रेंड आया आपके घर में और आपको ज्ञान बांट रहा है, या कोई आया आपके उसमें सर्कल में आपको ज्ञान बांट रहा है कि तुम्हें पता है मैंने कितने पैसे कमाए हैं? डिड आई टेल यू अबाउट माई लेटेस्ट एमरस कॉन्क्वेस्ट? तो मैंने बताया कि मैंने कितना अभी रिसेंटली, कॉन्क्वेस्ट का मतलब कॉन्कर से है, कॉन्कर का मतलब अचीवमेंट होता है, तो यानी कॉन्क्वेस्ट का मतलब भी अचीवमेंट ही हुआ। और एमरस का मतलब होता है जिसमें बहुत ज्यादा लव हो, लग्जरी हो, ऐसे लेविश वाला जो होता है। तो वो क्या कहना चाह रहा है, डिड आई टेल यू अबाउट माई लेटेस्ट एमरस कॉन्क्वेस्ट? कॉन्क्वेस्ट मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एमरस तो वो हो गया, आप भी मानेंगे, लग्जेरियस, और कॉन्क्वेस्ट का मतलब आपका अचीवमेंट, ओके।
कॉन्कर से बना है। एक राजा दूसरे राजा को कॉन्कर कर लेता है, आपने अपने एंगर को कॉन्कर कर रखा है। अचीवमेंट करना, तो आपका फ्रेंड आया, आपने बोला कि तुम्हें पता है मैंने रिसेंटली क्या अचीव किया, यानी जो बड़ी लग्जरियस आइटम क्या अचीव करी, यानी बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, कुछ भी जो बता रहा होगा आपको। लेट मी गिव यू माई ओपिनियन, ही सेज लाइक दैट, आई नो बिकॉज आई एम एन एक्सपर्ट एट प्रैक्टिकली एवरीथिंग। उसका कहना ये है कि यार मेरे को हर चीज़ मालूम है, मैं जानता हूँ हर एक चीज़ के बारे में। आप ऐसी सोच के हैं। यू आर बोस्टफुल टू द पॉइंट ऑफ बीइंग ऑब्नॉक्शियस। अब बोस्टफुल क्या होता है? अगर आप बोस्टफुल को वर्ड को जानते हैं तो बड़ा क्या कहते हैं, बड़ा बोस्ट करता है, यानी जो अपनी बड़ी डींगे हाँकता है। जो अगर इंग्लिश में एक वर्ड होता है ब्रैग करना, अपने बारे में बड़ी डींगे हाँकने वाला होता है, तो तुम बड़े बोस्टफुल हो। और कितने बोस्टफुल हो सकता है सभी हम बोस्टफुल हैं, थोड़ा बहुत अपना ज्ञान तो बांटते हैं कि मैंने ये किया, लेकिन अब बोस्टफुल हो गए इतना टू द पॉइंट ऑफ बीइंग ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का मतलब आपको सब लोग डिसलाइक करने लगे, आप इस तरीके की सोच के हो गए। ऑब्नॉक्शियस इज दिस ओनली। ऑब्नॉक्शियस इज मतलब kind of, you can say the kind of hate worthy. I have written this synonym underneath, अभी मैं स्लाइड में दिखाता हूँ। लेकिन हाँ, obnoxious का मतलब है बड़े आप हेट वर्दी, इस सोच के हो गए भैया आपको सब हेट करते हैं। यू हैव ओनली वन स्ट्रिंग टू योर कन्वर्सेशनल बो। बो क्या होता है? बो एंड एरो नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखो तो ये धनुष्मान होता है, भगवान राम का, जो हम अपने हिंदू मैथोलॉजी में कहते हैं ये धनुष्मान है, ठीक है ना। तो आपके झुकाव जिसे कहते हैं ना, आपका झुकाव बो, ये तुम्हारा बेंड जिसे कहते हैं, यानी आपका, हम ऐसा बोलेंगे जो आपका इंक्लिनेशन है, यानी आपका हर तरफ बात करने का एक ही झुकाव है। क्या है? यू हैव ओनली वन स्ट्रिंग टू योर कन्वर्सेशनल बो, नेमली योर सेल्फ। बस आपका झुकाव बात करते वक्त एक ही चीज का होता है, यानी आप एक चीज के मद्देनजर बात करते हो, एक चीज का पॉइंट ऑफ व्यू आपका होता है कि मैं अपने बारे में ज्यादा बात करूं। तो यू हैव ओनली वन स्ट्रिंग टू योर कन्वर्सेशनल बो। स्ट्रिंग तो तुम समझते हो ना, यानी ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। तो यानी आपका एक ही तरफ झुकाव होता है, क्या? अपने बारे में, यूर सेल्फ, एंड ऑन इट यू प्ले नंबर ऑफ मोनोटोनस वेरिएशंस। मोनोटोनस का मतलब क्या है? मोनोटोनस होता है काइंड ऑफ, यू से मोनोटोनस इज बोरिंग। हम सब बोलते हैं बोरिंग, लेकिन अगर देखा जाए आप कोई मूवी देखने गए, आपको मूवी पसंद नहीं आई, तो यू आर फीलिंग बोर, आप कहते हैं मूवी बोरिंग है। तो वहां पर बोरिंग कुछ और तरीके से हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मतलब क्या होता है, ये वाला बोरिंग तब होता है जब वो रूटीन टाइप का हो जाता है, जो यूजुअली हम सब लोग सुबह शाम करते हैं। तो क्या एक टाइम के बाद आपको लगने लगता है यार क्या लाइफ चल रही है, वही रूटीन हो रहा है। भाई पुरानी फ्रेज है, कहते हैं कि सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो मतलब क्या कि बस सुबह उठे, आपने दंत मंजन किया, वे शुरू हो गए, ऑफिस गए, फिर आए, शाम को खाया, सो गए। तो ऐसे में कई बार हम बड़े कहते हैं यार लाइफ बड़ी मोनोटोनस हो गई है, तो यू नीड ए ब्रेक, ऐसा वाला। तो कहते हैं कि वो ऐसा आदमी क्या है, वो यू प्ले अ नंबर ऑफ मोनोटोनस वेरिएशंस, रूटीन वाले वेरी कर करके अपनी बातों को सुनाते हो सामने वाले को। सामने वाले को पता होता है कि तुम क्या हाँकने वाले हो, लेकिन आप हर चीज को थोड़ा सा बदलाव कर देते हो। वट यू हैव डन, हाउ गुड यू आर, हाउ यू वुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड एड नॉसियम। आप इस तरीके से बोलते हो सब बातें में, आप अपने आप को वैल्यू देकर बात करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। और मैं भी जानता हूँ कि आप ऐसे ही बोलने वाले हो, क्योंकि मुझे पता है आपकी नेचर क्या है, कि आप बड़े घमंडी हो। तो यानी ऐसे वाले आदमी को क्या होता है, वो अपना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हर बात दिखाएगा कि भैया मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत बड़ा बोस्टफुल कैरेक्टर हो जाता है, तो वो एड नॉजियम बताता है। ओके, सो अगर आप इस तरीके के हो तो आप ईगोटिस्ट हो जाते हो, तो बड़े आप प्राउडी हो जाते हो, यानी दिमाग में घमंडी जिसे कहते हैं, वो आप प्राउडी होते हो। वी कॉल इट, ये जो पर्सन है ये आपका कौन है, ये आपका घमंडी पर्सन है। ओके, वी कॉल इट दिस गाय इज प्राउडी होता है। हालांकि प्राउडी कोई ऐसा वर्ड नहीं है इंग्लिश में, ओके, बट फिर भी हम बोलते हैं प्राउडी है, प्राउडी है, तो हमने लिख दिया आपके लिए कि प्राउडी होती है, ईगोटिस्ट हो जाता है, यानी दिमाग में चढ़ जाती है, बहुत घमंडी इंसान हो जाता है। दैट्स व्हाट वी कॉल इट, ईगोटिस्ट हो जाता है। लेट्स सी द वर्ड कंसीट। आई टोल्ड यू एक्सेसिव प्राइड, प्राउड इन वन सेल्फ हो जाता है। ओके, और इसको स्वी जेनेरिस भी बोलते हैं, एक वर्ड इसके लिए होता है, अगर आप नोट कर सकते हैं तो याद रखिएगा। ओके, देन एमरस इज लग्जरियस, आई टोल्ड यू। एनएमर्ड हो जाए, इरोटिक हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा जिसमें आपकी एक्साइटमेंट वाली चीज़ें आ जाती हैं, चाहे आपने बड़ी गाड़ी खरीदी थी, बड़ा बंगला खरीदा था, आप ये सब, उस सब के लिए वो कहते हैं लग्जरियस हो जाता है। एनएमर्ड, जो आपके दिल को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, वैसे वाला। ओके, देन कॉन्क्वेस्ट, आई टोल्ड यू, अचीवमेंट है, अकॉम्प्लिशमेंट है, अकॉम्प्लिशमेंट इज वर्ड,
एंड देन वी से बोस्टफुल हो जाता है, जो ब्रैग करता है। तो ब्रैग इज ए वर्ब, नाउ ब्रैगर्ट इज ए नाउन, वी से ही इज ए ब्रैगर्ट, वी से ही इज ए स्वैगरर होता है, स्वॉश बकलर भी बोलते हैं एक वर्ड जो बोस्टफुल होता है। काइंडली नोट दिस डाउन। ऑब्नॉक्शियस आई टोल्ड यू, डिस्गस्टिंग है, एबोमिनेबल है, लोथसम है। ओके कभी आप देखोगे तो ये वर्ड, एक वर्ड होता है लोथ, कभी आप गौर करना, और एक वर्ड होता है LOATHE होता है लोथ। तो ये जो लोथ होता है ये आपका वर्ब होता है, और ये लोथसम होता है ये जो होता है आपका नाउन होता है। इस लोथ का मतलब रिलक्टेंट होता है, और इस वर्ब का ये तो लोथ मतलब हेट करना होता है। ठीक है, जब ई लग जाता है तो वो लोथड वाला हो जाता है, हेट वर्दी, यहाँ लिखा है लोथ सम हो जाता है। ओके और वो लोथ मतलब वो रिलक्टेंट होता है। ओके काइंडली नोट इट डाउन। एंड देन वी से मोनोटोनस, मैंने पहले ही बताया, बोरिंग हो जाता है, रूटीन हो जाता है। बड़े वर्ड हैं इसके लिए, ट्राइड, बनाल, प्लेटिट्यूड, ड्रेरी, मेनी वर्ड्स आर देयर जो मोनोटोनस को इंडिकेट करते हैं। एंड देन we have this ad nauseum. What do you mean by the word ad nauseum? I've written it down. Something is done so often that it has become annoying or tiresome. इतनी ज्यादा बार हो जाता है कि वो आप सुन सुन के पक जाते हो। पक जाना जो होता है वो होता है। अब ये मोनोटोनस नहीं है, मोनोटोनस में आप बोर हो गए थे, यू लॉस्ट इंटरेस्ट, बट इसमें आप बड़े अनॉयड हो जाते हो। दैट्स व्हाट द केस इज, रिपीटेटिवली हो जाता है, टू मच हो जाता है, देन वी कॉल इट एड नॉसियम होता है। अभी जैसे वो गाड़ी से उतरेगा, हम 5 लोग खड़े हैं, तो हम उसके उतरने से लेकर और हमारे तक आने से पहले आपस में एक दूसरे को कानाफूसी कर लेते हैं कि यार वो आएगा ना अपने हाँकेगा, कुछ ना कुछ करके उसने यही कहना है कि भाई मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। तो यानी ये जो हमारे मन में फीलिंग आ चुकी है कि यार अब इसका रूटीन सुननी पड़ेगी, दिस व्हाट वी कॉल इट एड नॉसियम होता है। होप यू अंडरस्टैंड where to use the word monotonous, where to use the word ad nauseum, then how to use the word boastful is braggart and swashbuckler. We need to understand these words. It is not only कि आप सिर्फ egoist और egotist learn करेंगे. My idea of reading this word bar made easy that I really need to learn these 7 words and along with many synonyms. ओके तो ये सिर्फ 10 वर्ड पढ़ने के लिए मैं वो पर चैप्टर नहीं पढ़ रहा हूँ। 10 वर्ड के साथ साथ जो बीच में ये वर्ड हैं, एग्जाम में ये भी तो पूछ ही सकता है, ऊपर एमरस लिखते और नीचे बहुत सारे वर्ड लिखते, देन व्हाट विल यू डू? इवन हम कैट देने वाले स्टूडेंट हैं तो कल को आने वाले टाइम में आपको एक पेपर देना होता है। जब आप कैट क्लियर कर देते हैं तो आपको एक एग्जाम देना होता है, वहां पर जब आप जाते हैं तो वो वैट होता है, वी कॉल इट राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होता है। तो जब राइटिंग एबिलिटी टेस्ट में तो आपको वहां पर एक आर्टिकल लिखना पड़ता है ना, आप 300 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखते हैं, यू प्रेजेंट योर व्यूज एंड ऑल। अब उसमें क्या वोकैबुलरी यूज करते हो यार, ये चीजें प्रेजेंट करती हैं, यही मुझे बताती हैं कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट हो। वो जो आर्टिकल लिखते हो वही आपके इंटरव्यू टेबल पर जाता है, वहीं से मुझे पढ़ के पता चल जाता है कि आप कैसे स्टूडेंट हो सकता है एग्जाम तो आप मैथमेटिक्स के बल पर निकाल के आ गए हो, लेकिन when you are doing this writing ability you really need to use lot of vocabulary. It is not only कि आप एग्जाम में ऑप्शन देख के कर लोगे, आपको आना ही चाहिए, आपको पता होना चाहिए लोथ और लोथ में ई आएगा या क्या आएगा, ये फर्क होना चाहिए। So when you are doing this, when I say that read slow, I always have been saying my students kindly read slow. Why I say read slow? Just because the reason आप लोग तेज पढ़ते हो, जब आप तेज पढ़ते हो तो आप ओवरलुक कर देते हो, राइटर ने बहुत एफर्ट किया होता है, कहाँ कॉमा डालना है कहाँ नहीं डालना है, यह सारी चीजें उसने बताई होती हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो माई मिस्टेक ऑफ टाइपिंग, यहाँ पर फुल स्टॉप लगना चाहिए था बट नहीं लगाया, यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगना चाहिए था। अब राइटर तो अपना एफर्ट डाल रहा है, हम ना डालें बात अलग है। तो इसलिए स्लो पढ़ने से यू विल लर्न ए लॉट, एंड फिर वर्ड वोकैबुलरी पर आपको एफर्ट डालना होगा, देन ओनली यू विल लर्न समथिंग बेटर। ओके तो व्हेन यू रीड दिस, माय आइडिया इज, जब मैं कहता हूँ वर्ड पर मेड इजी पढ़ो तो आप क्या कहते हैं जी मैंने पढ़ लिया। इट इज नॉट ओनली यू आर रीडिंग ईगोइस्ट एंड ईगो, इट इज द वर्ड boastful, amorous, conquest, obnoxious, monotonous, then boastful के लिए braggart, swashbuckler, swaggerer, ये आपको आना चाहिए, ये इसके बिना हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। Let me tell you one thing. तो read some, spend some time with this. Now you see the word egoist and egotist आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वर्ड जो ईगो और इस्ट है, और ये वर्ड में ईगो और, हालांकि इसके बारे में बाद में भी बात होगी, और ईगो और टेस्ट है, तो यानी ये टी आया है ना यहाँ पर एक्स्ट्रा, ये जो यहाँ पर हमने लगाया है वो एक्स्ट्रा टी लगा दिया है, तो ये ईगो टेस्ट बन गया है। अब हमने ये माना कि ये तो आपका सेल्फिश है,
और ये माना हमने, ये बड़ा प्राउडी है। तो बचपन से आज तक अगर आपने स्कूल में जब भी पढ़े थे, टीचर्स ने आपको क्या कहा, लाइफ में सब एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, जो अपने आप को बड़ा नखरेबाज है, जो अपने आप को बड़ा हीरो समझता है, वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, तो हम हमेशा कहते हैं यार वो बड़ा ईगोइस्ट पर्सन है, हम ऐसा बोलते हैं। बट दैट इज रियली रॉन्ग वर्ड वी आर यूजिंग। आज तक आपने 5000 बार दूसरे को ईगोइस्ट बोला होगा, जबकि वो ईगोइस्ट नहीं था, वो ईगोटिस्ट था। आपने कभी गौर ही नहीं करा, जिसको हमने ईगोइस्ट बोला वो ईगोटिस्ट था। चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका रिलेटिव हो, आप उसे कहना चाहते थे कि वो नाक में मक्खी नहीं बैठने देता, किसी की बात नहीं समझता, अपने आप को बड़ा ऐसा समझता है, वो घमंडी था। घमंडी के लिए ईगोटिस्ट बोलना चाहिए था, शायद ही कभी आपने ईगोटिस्ट बोला हो। हम सब ईगोइस्ट ही बोलते हैं, एंड दैट इज व्हाट द रॉन्ग इज। तो व्हेन यू रीड दिस यू लर्न, ओके यार बेसिक मिस्टेक क्या कर रहे हैं। तो अब अगली बार आप किसी को घमंडी कहना चाहते हैं तो ईगोटिस्ट बोलिए। और ईगोइस्ट कौन है? जो सेल्फिश है, सब अपना फायदा देखते हैं। वो मैं भी हूं और आप भी हैं, कहीं ना कहीं छोटे मोटे ईगोइस्ट तो सभी इंसान हैं। ह्यूमन नेचर होती है कि वी आर ऑल ईगोइस्ट लाइक दिस ओनली। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि जब मेट्रो में जाते हैं, रश होता है, हम खड़े होते हैं, जैसे मेट्रो का दरवाजा खुलता है, हम भागकर सीट पर नहीं बैठ जाते, दूसरे को खड़ा रहने देते हैं। तो फिर हम क्या हुए? फिर हम ईगोइस्ट ही तो हुए, क्योंकि हम अपना फायदा देख रहे हैं। नहीं तो फिर मुझे खड़े हो जाना चाहिए था, आपको कहता है सर आप बैठ जाइए, ऑब्वियसली। अब ऐसे तो महात्मा बुद्ध कोई भी नहीं है ना यार, यानी बाय नेचर वी ऑल आर ईगोइस्ट समवेयर, कोई थोड़ा कम कोई ज्यादा, वो बात है उसके बाद में अगली क्लास में बात करेंगे ईगो सेंट्रिक क्या होता है, ईगो मैनियक क्या होता है। बट अभी ईगोइस्ट इज ईगो का एक्सपर्ट, ईगो और इस्ट है, यानी वी आर ऑल सेल्फिश। बट ईगोटिस्ट वो आपका दोस्त है या आपका रिलेटिव है, आपका कोई भी अड़ोसी पड़ोसी, जैसा भी इसको भी आप कहना चाहते हैं, वो ईगोटिस्ट है, वो घमंडी है। अगली बारी यूज करते हुए ध्यान रखिए। चलिए, देन लेट मी हेल्प यू काइंड ऑफ पर्सन, जो हमेशा आपकी मदद करने के लिए आगे आए, ऐसे पर्सन को आप क्या बोलेंगे? वी कॉल दिस पर्सन इज, यू हैव डिस्कवर्ड द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस। आपको पता है जिंदगी में अच्छी सुख कब मिलेगा, सबसे अच्छी हैप्पीनेस क्या है? कंसर्निंग योर सेल्फ विद द वेलफेयर ऑफ अदर्स। दूसरों को वेलफेयर में, दूसरों को फायदे में आप अपना फायदा देखते हैं, दूसरे के भले में आप अपना वेलफेयर देख रहे होते हैं। ये दूसरे का जब बुरा अच्छा करना चाहते हैं तो नेवर माइंड योर ओन इंटरेस्ट, आपको अपना कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ इज द नेक्स्ट फेलो गेटिंग अलोंग इज योर कंसर्न। हाउ इज द नेक्स्ट फेलो गेटिंग अलोंग इज योर कंसर्न। इसका मतलब क्या है? आप इस नेचर के हो कि दूसरे का कंसर्न देखते हो, मेरा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन यार पहले उसकी चिंता करते हो। अब इस तरीके के पर्सन हो तो फिर कौन हो आप? अल्ट्रुइस्ट हो। अल्ट्रुइस्ट हो, जो बड़ा ही अल्ट्रुइस्ट पर्सन जो होता है वो सेल्फलेस पर्सन होता है। जो सेल्फलेस पर्सन होता है मतलब अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सब दूसरों के लिए चाहिए। आई टोल्ड यू भाई, अगर आप बुद्धा की बात करेंगे, मुझे तो बुद्धा ही मालूम है, कोई और भी हो सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन महात्मा बुद्ध की बात करें तो महात्मा बुद्ध बड़े अल्ट्रुइस्ट कैरेक्टर थे, वो सेल्फलेस कैरेक्टर थे, अपने लिए कुछ नहीं, दूसरों के लिए चाहिए था, अपना कोई कंसर्न नहीं था। दैट इज व्हाट द अल्ट्रुइस्ट हो जाता है, अगली बार याद रखिए। देन एक फिलेंथ्रोपिस्ट भी होता है। नाउ व्हेन यू से चैरिटेबल, लाइक फिलेंथ्रोपिस्ट इज द चैरिटेबल पर्सन। चैरिटेबल मतलब जो पैसा दे सकता है, सामान दे सकता है, जैसे आप कभी व्रत रखते हो या पूजा करते हो तो जी सामान दे देते हो, वो एक अलग बात है, आप फिलेंथ्रोपिस्ट है। आपने 10,000 20,000 50 लाख 100 लाख कुछ भी दिए, वो क्या है? आप फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, चैरिटेबल पर्सन होते हैं। लेकिन अल्ट्रुइस्ट कौन है? वो सेल्फलेस होता है। बुद्धा काइंड ऑफ थिंग इज अल्ट्रुइस्ट है, मदर टेरेसा इज अल्ट्रुइस्ट है, फिलेंथ्रोपिस्ट इज जो दूसरे का भला करे। कितने लोग चैरिटेबल पैसा देते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, कितने लोग होते हैं चैरिटी करते हैं, वो फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं। इवन कर्ण भी अगर महाभारत के उसमें देखें तो वो भी कहीं ना कहीं फिलेंथ्रोपिस्ट थे। उन्होंने भी अपने जो भी चैरिटी करी उसकी अगेंस्ट भगवान कृष्ण से मांग ही लिया था, यानी सेल्फलेस नहीं थे, पीछे इंटरेस्ट जरूर था, तो वो फिलेंथ्रोपिस्ट कंसिडरेशन में आता है। फिर ऐसे एक वर्ड होता है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट होता है जो एक बेनेवोलेंट होता है, एक मैलेवोलेंट होता है। बेनेवोलेंट हेल्पफुल करने वाला, मैलेवोलेंट जो है वो, अगर आप उसका देखोगे जब भी वर्ड मैल आएगा तो वहां पर क्या नेगेटिव हो जाता है। तो मैलेवोलेंट जो है वो नेगेटिव होगा, दूसरे का हार्म करने वाला, यहाँ बेनेवोलेंट हो जाएगा। एंड देन वी से इज जेनरस, जो अरे ले जाओ, जिसे हिंदी में बोलते हैं उदार आदमी होता है। आप मेरे पास आए, मेरे पास एक बढ़िया सा पेन रखा था, आपने कहा मैं ले जाऊं, मैं कहा चल यार ले जा, तो ये क्या हुआ? जनरस हो गया, ये गिवर होता है, चल दे देते हैं, बेनेवोलेंट होता है।
and then we call it good Samaritan is the person helping others despite his own losses. That is good Samaritan हो जाता है. Okay. जो अल्ट्रुइस्ट है उसका लॉस कुछ नहीं हो रहा, वो तो मान ही रहा था मेरा कुछ है ही नहीं, तो इसलिए उसका लॉस नहीं है. तो गुड समैरिटन अल्ट्रुइस्ट जैसा नहीं होता. फिलैंथ्रोपिस्ट जानबूझकर उतना देता है, उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहा होता है, ऐसे वाला होता है. लेकिन गुड समैरिटन कौन है? जो दूसरों की मदद करता है, चाहे अपना कुछ नुकसान भी हो जाए तो बॉदर नहीं करता. मैं मान लीजिए सड़क पर आप जा रहे थे, मेरी गाड़ी खराब हो गई, आप गुजरे, आपने अपनी गाड़ी रोकी, आप मुझे नहीं भी जानते, आपने अपनी गाड़ी रोकी, फिर मेरी हेल्प करी, फिर जब मैं चला गया तो फिर आप अपने ऑफिस गए, तो आपको लेट तो हो गया लेकिन आपने मेरी हेल्प की. तो दिस काइंड ऑफ पर्सन इज नोन एज गुड समैरिटन होता है. न्यूज़पेपर में आता रहता है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड. नाउ व्हेन वी से कि यार अल्ट्रुइस्ट होता है, तो यानी अब आपको चारों पांचों लोगों के बीच में एक की डिफरेंस है, दिस विच आई हैव ट्राइड टू टेल यू, कि यार अल्ट्रुइस्ट कौन है, फिलैंथ्रोपिस्ट कौन है, बेनेवोलेंट कौन है, जनरस कौन है, गुड समैरिटन कौन है. सो दिस इज द सिल्क डिफरेंस ऑफ दीज वर्ड्स व्हिच वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, चलिए आगे चलते हैं. लीव मी अलोन काइंड ऑफ पर्सन, कि यार मैं अकेला छोड़ दो, ऐसा पर्सन कौन होगा? वी से लाइक ए बायोकेमिस्ट स्टडीइंग ए कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया अंडर द माइक्रोस्कोप, यू माइन्यूटली एग्जामिन योर एवरी थॉट, फीलिंग एंड एक्शन. हर चीज को बड़ा पेक्यूलियरली देखते हो. कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया आप क्या समझते हो? कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया? Colony of bacteria is the collective noun. You understand? This is the colony. ये प्रैक्टिकली कलेक्टिव नाउन होता है. जब हम किसी की कॉलोनी बोलते हैं, कॉलोनी अगर आपको याद है तो कॉलोनी ऑफ पैरट्स भी होता है, कॉलोनी ऑफ ह्यूमंस भी होता है, यानी कलेक्टिव नाउन होता है. यानी जब आप बहुत सारे बैक्टीरिया के ग्रुप को माइक्रोस्कोप में देखते हो तो बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे होते हो. प्रोबिंग फ्यूटाइल क्वेश्चंस. प्रोब करना क्या है? डीप इनटू जाकर जब आप चेक करते हो किसी को तो प्रोब करते हो. ऑस्ट्रोस्कोप जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो स्टूडेंट देख रहा हो उसने ऑफिस में यूज किया होगा अपने लैब के अंदर. ऑस्ट्रोस्कोप की प्रोब होती है जिससे आप सिग्नल चेक करते हो, माइक्रोप्रोसेसर का कितना डिजिट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, वो प्रोब होता है. यानी डीप इनटू जाकर किसी चीज को सर्च करना प्रोब करते हैं. और फ्यूटाइल का मतलब तो आप वेरी वेल अंडरस्टैंड. फ्यूटाइल होता है यूजलेस कहते हैं, कि आप कहते हैं कि यार ये जो तुम कर रहे हो, दिस विल बी अ फ्यूटाइल एफर्ट, इससे कुछ नीचे निकलने वाला नहीं है. जैसे फ्रूटफुल होता है उसके अगेंस्ट फ्यूटाइल होता है. क्वेश्चन लाइक व्हाट डू अदर पीपल थिंक ऑफ मी. आप ऐसे बेकार के क्वेश्चन सोचते रहते हो, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हाउ डू आई लुक, मैं कैसा लगता हूँ, एंड मे बी आई शुडंट हैव सेड दैट. आप कहीं गए मीटिंग में कुछ बोल दिया, किसी घर गए कुछ बोल दिया, फिर आपका सारा दिन आपके दिमाग में लग रहता है हो मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पता है उसने क्या सोचा होगा. आप इस तरीके के आदमी होते हो. आर योर कॉन्स्टेंट नैगिंग कंपेनियंस. ये वो चीजें हैं जो आपके दिमाग में हमेशा लगी रहती हैं, वो आपको हमेशा वरी करती रहती हैं. ये नैगिंग कंपेनियन होते हैं, ये आपके हमेशा अनोइंग फैक्टर्स रहते हैं. फॉर यू आर अनेबल टू रियलाइज, क्योंकि तुम ये यहाँ पर फॉर का मतलब क्या है? फॉर का मतलब बहुत बार आप देखोगे बिकॉज की तरह यूज हो जाता है. आप ध्यान से पढ़ के देखो, आप लोग ध्यान नहीं देते तो नहीं समझ आता. आर योर कॉन्स्टेंट नैगिंग कंपेनियंस फॉर you are unable to realize that other people do not spend as much time and energy analyzing you as you think. दूसरों के पास इतना टाइम नहीं है कि जो तुम्हारे बारे में सोचते रहे, लेकिन आपको लगता है कि वो आपके बारे में बहुत सोच रहे होंगे कि आपने ऐसा कहा था. यू मे सीम अनसोशल. आप बड़े अनसोशल लगते हो, यानी सोशली आप बिहेव करना नहीं जानते, ऐसा सीम होता है, लोग ऐसा मानते हैं कि आप बड़े अनसोशल काइंड ऑफ कैरेक्टर हो. येट योर ग्रेटेस्ट डिजायर इज टू बी लाइक्ड एंड एक्सेप्टेड. फिर भी कहीं ना कहीं फ्रॉम सम कॉर्नर ऑफ योर हार्ट यू वॉन्ट कि यार लोग आपको पसंद करें, आपकी भी वैल्यू हो, ऐसा कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. You may be shy and quiet. You are often moody and unhappy. Okay, and you prefer solitude or at most the company of one person to a crowd. ये पहली बात तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो solitude का मतलब क्या होता है? अलूफ होना होता है. Alone कह सकते हो काइंड ऑफ थिंग. Solitary जिसे बोलते हैं, शायद मैंने लिखे भी होंगे ये वर्ड, मैं नीचे देखता हूँ. और at the most कंपनी ऑफ वन पर्सन टू ए क्राउड. अगर मैं यहां पढ़ना चाहूं तो यू प्रेफर, देखो यहां पर मैंने लिखा है यू प्रेफर सॉलिट्यूड. यू प्रेफर सॉलिट्यूड टू वन पर्सन टू ए क्राउड. तो यहां हम बात करना चाह रहे हैं कि यार सॉलिट्यूड के साथ अगर प्रेफर के साथ एंड यू प्रेफर, अगर आप देखोगे यू प्रेफर सॉलिट्यूड टू
अ क्राउड होता है, तो जब भी प्रेफर लगाते हैं उसके साथ प्रपोजिशन हमेशा टू लगाते हैं। मैं कितनी बारी क्लासेस में पूछता हूं कि भैया, तो उसका आंसर होता है आई प्रेफर मिल्क टू टी होता है। आप कितने भी लोगों से पूछ लीजिए, पूरी दिल्ली यहां पर ओवर लगाती है, लेकिन टू होता है। जब भी प्रेफर आएगा उसके साथ आप हमेशा टू लगाएंगे। किसी से पूछो इसकी हिंदी बताओ कि मैं चाय से ज्यादा दूध पसंद करता हूं, तो सब बोलते हैं आई प्रेफर मिल्क ओवर टी, बट दैट इज रॉन्ग। आई प्रेफर मिल्क टू टी आपको याद रखना है। ओके, तो यहां पर आ जाते हैं वापस। यू मे बी शाई एंड क्वाइट, यू आर ऑफन मूडी एंड अनहैप्पी, एंड यू प्रेफर सॉलिट्यूड टू ए क्राउड, या यू प्रेफर एट मोस्ट द कंपनी ऑफ वन पर्सन टू ए क्राउड। यानी आप एक दो लोगों से मिक्स होना चाहते हो, ज्यादा नहीं। यू हैव एन एप्टीट्यूड फॉर क्रिएटिव वर्क। नेचुरली जब आप खाली होंगे, आप ज्यादा लोगों से नहीं मिलेंगे, आपके पास समय बचेगा, तो आप कुछ कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। एंड आर अनकंफर्टेबल एंगेजिंग इन एक्टिविटीज दैट रिक्वायर कोऑपरेशन विद अदर पीपल। आप ग्रुप एक्टिविटीज नहीं कर सकते, आप इंडिविजुअली एक्टिविटी करना चाहते हो। यू मे इवन बी ए जीनियस, आप हो सकता है जीनियस हो, और इवेंचुअली टर्न इनटू वन। ऑब्वियसली जब आपके पास इतना टाइम बचेगा, जब पब्लिक मीटिंग नहीं करोगे, तो आप फिर कुछ ना कुछ क्रिएटिव करोगे। कुछ क्रिएटिव करोगे तो या तो फिर जीनियस ही हो आइंस्टीन की तरह, कि अपने में बिजी रहकर अपना पूरा टाइम 24/7 अपने में यूज कर रहे हो, या फिर ऐसे यूज करोगे तो यार बाद में वो कहता है कि फिर अल्टीमेटली आप जीनियस बन जाओगे। ऐसा वो थोड़ा सरकास्टिकली स्टेटमेंट दे रहा है। ओके, नाउ तो आप बड़े क्या हुए, सॉरी इट इज अंडर दिस पर्टिकुलर राइटिंग, आप इंट्रोवर्ट हो जाते हो, यू बिकम एन इंट्रोवर्ट होते हैं। ओके, दैट्स व्हाट वी से, यू आर एन इंट्रोवर्ट आफ्टर दैट। दिस इज द वर्ड रिटन देयर, इंट्रोवर्ट हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी द वर्ड कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। मैंने बोला कलेक्टिव नाउन है, प्रोब करना, डीप सर्च करना आता है, इनटू अ मैटर होता है। फ्यूटाइल मैंने बोला ऑफ नो यूज, यूजलेस होता है। वेन भी वर्ड होता है। आप कहते हैं ना शी वर्कड वेरी हार्ड बट इन वेन, हम कितनी बारी हम ऐसा लिखते हैं, बट इन वेन करके लिखते हैं। बट इन वेन मतलब ऑफ नो अवेल भी बोलते हैं, कभी आपने सुना हो, यानी ऑफ नो यूज करके बोलते हैं। दैट इज हाउ वी यूज इट। ओके, देन नैगिंग होता है, मैंने बोला एनॉइंग होता है, जो आपको बैजर करते रहते हैं। बैजर करना भी किसी को अनॉय करना होता है। टॉर्मेंट भी वर्ड होता है अनॉय करने के लिए, थोड़ा सा हार्श वर्ड है। देन अनसोशल मैंने बोला, कई लोग उसे एंटी सोशल भी बोलते हैं, बट हु बिहेव्स ऑकवर्डली टू द रिक्विजिट सोशल नॉर्म्स हो जाता है। ऐसे अनसोशल पर्सन जो बड़ा ऑकवर्ड होता है, वैसे बिहेव नहीं कर सकता जैसे कि उसे सोसाइटी में करना चाहिए, दैट इज अनसोशल होता है। एंड देन वी हैव अनदर वर्ड असोशल। असोशल इज अनसोशेबल होता है, नॉट सोशेबल, विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी होता है। वो ऐसा पर्सन जो सोसाइटी में कनेक्ट ही नहीं होता, वो अनसोशेबल होता है। किसी भी पर्सन के लिए हम, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि सोशेबल और अनसोशेबल होगा। एक तो आदमी ऐसा है जो अनसोशलाइज सोसाइटी में जाए, उसको बातचीत करना, ज्यादा बिहेव करना ना आता हो। ठीक है, पार्टी में जाकर 50 लोगों के ग्रुप में आप बिल्कुल कुछ नहीं बात कर रहे, तो आप थोड़ा अनसोशल कंसिडरेशन में रहेंगे। लेकिन आप पूरी सोसाइटी को कट ऑफ कर देते हो और आप कहते हो यार मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं तो जाता ही नहीं इन सब जगहों पर, ये तो फिर हम आपको क्या मान सकते हैं कि आप सोशेबल नहीं हो, आप ज्यादा मिक्स होना, मिंगल होना नहीं चाहते हो, विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी हो। वी कंसिडर लाइक दैट। दोनों में डिफरेंस है। एंड सॉलिट्यूड आई टोल्ड यू अलूफनेस होता है, हाँ सेक्लूजन भी होता है, एंड सॉलिटरीनेस भी होता है। ओके, तो यानी आपके लिए वर्ड अनसोशल और ए सोशल में फर्क है, याद रखिए। तो अनसोशल एंटी सोशल टाइप का हो गया, जो ऑकवर्डली बिहेव करेगा, सोसाइटी में जाकर ढंग से बात करना ना जानता हो, और असोशल मतलब जो अपने आप को परे रखता हो, इन सब से वो असोशल हो जाता है। होप यू आर गेटिंग what is the right way of doing this word par made easy, learning these words within. It is not only रट्टा मार लिया इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, वो तो किसी गधे को भी आता है यार, ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन है, सबको आते हैं। लेकिन आपको असोशल और अनसोशल में फर्क पता था? नहीं पता, तो इसका मतलब आज आपने कुछ सीख लिया है। दैट इज व्हाट द केस इज। नैगिंग, नैगिंग तो फिर एनॉइंग, फिर वो बार बार आपके दिमाग को खाता रहता है, जैसे कहते हैं ना, वो आपके दिमाग को इरोड करता है। इसके लिए एक वर्ड होता है नॉ करना, ये होता है जो नैगिंग होता है, जो बार 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 आपके दिमाग को कुरेदता रहे, लगा रहे, वो होता है नैगिंग। This is the way we really need to learn our English. I always say that drop by drop you find your picture filled. It is what the English is. It is not mathematics कि आपने फॉर्मूला कर लिया आ जाएगा. It will gradually you learn. Now let's
डू टुगेदर, मिलकर करने वाला जो होता है वो कौन है? ये है भैया। यू वुड बी ग्रेट एज अ टीचर, काउंसलर, एडमिनिस्ट्रेटर, इंश्योरेंस एजेंट। आपके ये वाले सर्कल के आप ऐसे पर्सन हो सकते हो। यू कैन ऑलवेज बिकम इंटरेस्टेड, सिंसियरली, वाइटली इंटरेस्टेड। आप इंटरेस्टेड होते हो, सिंसियरली इंटरेस्टेड होते हो, वाइटली इंटरेस्टेड हो जाते हो। बहुत ही ज्यादा, वाइटल का मतलब क्या होता है? वेरी मच। तो वाइटली इंटरेस्टेड होते हो किसमें? इन अदर पीपल्स प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरे का क्या हो रहा है यार, उसे कुछ हुआ नहीं, अच्छा उसको देख लेता हूँ, इस तरीके की सोच के आप लोग पर्सन है। यू आर द लाइफ ऑफ द पार्टी बिकॉज यू नेवर वरी अबाउट द इफेक्ट ऑफ योर एक्शंस। आप क्या कर रहे हो पार्टी में, दारू पी के डांस कर रहे हो या नागिन डांस कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, ये तो यार आत्मा ही जानती है आपकी, लेकिन आप कर रहे होते हो। बस आप वरी नहीं करते कि हाय मेरे को लोग क्या बोलेंगे, कि मेरा कोट कहाँ जा रहा है और मैं क्या ड्रामा कर रहा हूँ। लेकिन आप एंजॉय करते हो और आपको दूसरे लोग भी एंजॉय कर रहे होते हैं पार्टी में। आप शादियों में जाते हैं, यू मस्ट हैव सीन पीपल लाइक दिस ओनली एंड देन यू जस्ट क्लैपिंग ऑन देम। आप बॉदर नहीं करते, वो बॉदर भी नहीं करता कोई क्लैप कर रहा है या मेरा मजाक बना रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता। नेवर इनहिबिट योरसेल्फ विद डाउट्स अबाउट डिग्निटी और प्रोप्राइटी। आप कभी इनहिबिट मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं करते अपने आप को कि हाय मेरी डिग्निटी कम हो जाएगी या मैं प्रॉपर तरीके से कर भी रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता भैया, आप बिंदास इंसान हो। यू आर यूजुअली हैप्पी, जनरली फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स हो जाते हैं। यू लव टू बी विद पीपल, लॉट्स ऑफ पीपल। आप लोगों में मिक्स होना जानते हो। योर थॉट्स, योर इंटरेस्ट, योर होल पर्सनैलिटी आर टर्न्ड आउटवर्ड। आपका पूरा जो पर्सनैलिटी है वो टर्न्ड आउटवर्ड है। आप रिफ्लेक्ट करते हो इस चीज़ों को। ऐसे वाले पर्सन हो तो फिर आप एक्सट्रोवर्ट हो। होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे लोग मिलते हैं आपको अपने सर्कल में, 10 में से एक आधा पर्सन मिल सकता है जो बड़ा एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ फेलो होता है। वो हमेशा आपके साथ चलने को तैयार रहेगा, आपकी प्रॉब्लम को सुनने को तैयार रहेगा, लाइवली होगा पार्टी में, सब तरीके से। मैंने लिखा है वहां पर, क्या वो लिख ही रहा है, मैंने नहीं लिखा, मतलब जो बुक में लिखा हुआ है कि यू आर दी लाइफ ऑफ द पार्टी। ऐसे पर्सन होते हैं तो वो एक्सट्रोवर्ट होता है। फ्यू वर्ड्स अंडरनीथ काउंसलर मैंने लिखा, देखिए काउंसलर वाला जो होता है COUNSELLOR, काउंसिल। काउंसलर होता है, अगर आप मैं देखूं तो आई विल गो बैक, काउंसलर होता है और ये जो वर्ड है अगर आपने कभी पढ़ा हो तो वो काउंसिलर भी होता है। आपको ये चीज समझ लेनी है। काउंसलर तो वो आपका काउंसलर होता है जो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी होता है, ठीक है। आपके एरिया का जो भी इलेक्टेड पर्सन होता है वो होता है MLA। काउंसलर होता है CI होता है। और ये काउंसलर कौन है? जो आपको स्कूल में गाइड करता था वो अदरवाइज वाला, वो काउंसलर है। देन वाइटल, आई टोल्ड यू एब्सोल्युटली नेसेसरी, एसेंशियल होता है, वो काउंसलर हो जाता है, वाइटल होता है, सॉरी काउंसलर आई रिटन देयर। देन मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव सोसाइटी होता है, ओके। देन इफेक्ट। अब बार बार ये मैं क्लासेस में पूछता हूं भैया इफेक्ट और इफेक्ट का फर्क बताओ। जिसको आता हो वो अपने आप को वेरीफाई करेगा, लेकिन ई वाला जो होता है इफेक्ट होता है, ये नाउन होता है और ये जो आपका वर्ब होता है, वी से लाइक दैट ओनली, इफेक्ट होता है, ये नाउन है। और ए इफेक्ट वाला वो वर्ब है, यानी इसको हिंदी में मैं बोलूंगा तो ये मैं इफेक्ट को मतलब क्या लिखूं, ये प्रभाव है और ये प्रभावित करना है। नहीं, आप कहते हैं आई एम ग्रेटली अफेक्टेड बाय दी पर्सनैलिटी ऑफ महात्मा गांधी। भाई मैं तो ऐसे क्लासिक सेंटेंस आपके लिए लिख लूंगा। द साइड इफेक्ट्स, आप ऐसे लिखिए, साइड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग कैन अफेक्ट आवर लंग्स। तो यानी ये क्या हुआ, साइड इफेक्ट। इफेक्ट मतलब क्या हुआ, यहां पर ये नाउन हो गया, और कैन अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ तो मेन वर्ब भी आया होगा, तो ये फिर ये वर्ब का काम करता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, कीप इट इन माइंड। ये मत कहना कि वो उसको इफेक्ट करना होता है, ये खुद को इफेक्ट होना होता है, सॉरी माय डियर, ओके। एंड इनहिबिट मैंने बोला रिस्ट्रिक्ट करना है, हिंडर करना है, रिस्ट्रेन करना है। हिंडर मतलब रुकावट डालना होता है, इनहिबिट करना रिस्ट्रिक्ट करना है। Then dignity, the sense of being worthy of honor or respect, a sense of pride in oneself. Sorry, it should be the word pride. यानी यहाँ पर आपको ये मानते हैं कि कितना अच्छा मैं कर रहा हूँ, वो that you need to understand कि प्राइड क्या है, डिग्निटी क्या है, वो that's what we say. And then propriety.
प्रोप्राइटी मीन्स करेक्टनेस होता है, मोरालिटी होता है, डेकोरम होता है कि भाई मैं डेकोरम से काम कर भी रहा हूँ, यानी प्रोप्राइटी मतलब प्रॉपर से है। तो आप इन चीजों की चिंता नहीं करते, आप अपना एंजॉय करते हो। दैट इज व्हाट द लेट्स गेट टुगेदर, लेट्स डू इट टुगेदर वाला पर्सन है। देन वी से नीदर एक्सट्रीम। नीदर एक्सट्रीम का मतलब होता है आप ना तो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हो ना बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हो, यू हैव बोथ इंट्रोवर्टेड एंड एक्सट्रोवर्टेड टेंडेंसीज। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, आपके अंदर इंट्रोवर्टेड भी हैं, एक्सट्रोवर्टेड भी हैं, आप इंट्रोवर्ट भी होते हो और आप एक्सट्रोवर्ट भी होते हो। एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट ओकेजन्स योर इंटरेस्ट आर टर्न्ड इन अबाउट इक्वल प्रोपोर्शंस both inwards and outwards. Indeed, you are quite normal in the sense that your personality is like that of most people. 99%, 90% of people are like this only. आप और मैं हमेशा नॉर्मली कम बात करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ज्यादा बात कर भी लेते हैं। तो हम इंट्रोवर्ट भी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। कुछ होते हैं जो प्योरली इंट्रोवर्ट हैं, कुछ हैं जो प्योरली एक्सट्रोवर्ट हैं। तो अब नीदर एक्सट्रीम वाले हुए तो आप क्या हुए, तब आप एम्बीवर्ट हुए। बाद में जाकर आप कभी पढ़ेंगे कि एमबी का मतलब, आगे वाले सेक्शंस में, एमबी का मतलब होता है बोथ, और वर्ड का मतलब होता है टर्न। तो यानी आप दोनों तरफ टर्न कर सकते हैं, तब आप एमबी वर्ड बन जाते हैं। ओके, याद रखेंगे, बाद में बात करेंगे। फिर अगर एमबी वर्ड बोथ है तो फिर एमबी लॉक्वेंट हो जाएगा, तो एमबी डेक्स्ट्रस हो जाएगा, एमबी ग्यूअस हो जाएगा, और एमबी सेक्सुअल हो जाएगा। यहां पर भी एमबी आ रहा है, वहां पर बोथ हो रहा है। तो एमबी लॉक्वेंट है, टू स्पीक एम्बिगुअसली। लोक्वेंट मतलब स्पीच होता है। अगर आप बात करेंगे तो लॉक्वेंट जो है वो स्पीच को बात कर रहा है, यानी आप दोनों तरफ स्पीच देते हो, और वो आप सही भी बोलते हो कुछ भी बोलते हो तो मैं पता नहीं, समझ ही नहीं पाता कि आप क्या कहना चाहते हो। तो आपकी स्पीच का जो जो क्रक्स है वो एम्बिगुअस है, मुझे समझ नहीं आता, कंफ्यूजिंग वाला है। एम्बीडेक्स्ट्रस बाद में पढ़ेंगे, जो दोनों हाथों को इक्वली यूज कर सकता है। एम्बिगुअस होता है, अनक्लियर होता है, और एम्बी सेक्सुअल मतलब दो सेक्स वाला होता है। कुछ क्रीचर ऐसे होते हैं, वो इससे लाइक दैट एम्बी सेक्सुअल हो जाता है। ओके, देन पीपल आर नो डैम गुड। आप हमेशा सबको हेट करते हो, आप कहते हो सारे पागल हैं यार, कोई ढंग का बंदा ही नहीं है दुनिया में, कोई आदमी सही हो ही नहीं सकता, सबके सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं। यानी आपके दिमाग में हमेशा दूसरों को लेकर एक नेगेटिव इमेज आपने बना ली है, दूसरों को लेकर आपको कोई आदमी सही लगता ही नहीं, सब में कमियां नजर आती हैं। तो आप कैसे हो, देखिए, सिनिकल, embittered, suspicious. You hate everybody, everyone, especially, but never to be admitted yourself. अपने आप को आप मानते नहीं हो कि मैं सबको हेट करता हूं, लेकिन हाँ ऐसा है। द परफेक्टिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, आप कहते हो कि ह्यूमन रेस परफेक्ट हो सकती है, मतलब ही नहीं उठता, नॉनसेंस। आप कहते हैं ये लॉजिक ही नहीं है, नो वे। द स्टुपिडिटी, द मीननेस, द क्रुकेडनेस ऑफ मोस्ट मॉर्टल्स। मॉर्टल्स मतलब जो मर जाते हैं, यानी ह्यूमन तुम्हारे मेरे जैसे, कि आप कहते हो कि जो मीन होते हैं, स्टुपिड होते हैं, क्रुकेड मतलब विकेड होते हैं, ऐसे लोग होते हैं मॉर्टल, सारे के सारे, मोस्ट सारे ऐसे होते हैं, सारे प्रोबेबली ऑल ऐसा लाइक होते हैं। दैट इज योर फेवरेट थीम, यानी आपके बात करने में, आपकी सोच में ये मेन सोच है कि सारे लोग स्टुपिड हैं, सारे लोग मीन हैं, सारे लोग विकेड हैं, सारे जितने भी मॉर्टल्स हैं कोई भी परफेक्ट नहीं है, सारे के सारे ही गलत हैं। अगर आप इस सोच के होते हो तो आप मिस एंथ्रोप होते हो। अगर आप बाद में जाकर कभी पढ़ोगे कि एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन, फिर हमने बोला मिस लगा दिया, तो फिर जहां पर भी मिस आएगा वहां पर हेट हो जाएगा, मिस इंटरप्रिटेशन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, तो मिस एंथ्रोप हो जाता है। अगर इसी के आगे मैं फिल लगा देता हूं और फिर आगे एंथ्रोप लगा देता हूं, तो फिर मतलब क्या होता है, आप फिर लवर ऑफ मैनकाइंड हो जाते हो। फिल का मतलब लव होता है, बहुत सारे वर्ड आएंगे आगे, ये बताता है कि फिलीन से बना है। फिल आप मान के चलिए कि जब में PHIL आएगा उसका मतलब वो लव होगा, तो फिल एंथ्रोप हो जाता है। अभी आप क्या हो, मिस एंथ्रोप। अभी देखें सिनिकल कौन होता है, अभी सिनिकल वो होता है बिलीविंग दैट पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाई सेल्फ इंटरेस्ट, कंटेम्प्टुअस, मॉकिंग, स्कॉर्नफुल होता है। कंटेम्प्टुअस मतलब जो दूसरे को लुक डाउन अपॉन करता है, यानी मानता है कि दूसरे बेकार होते हैं, आप ऐसे वाली नजर से देखते हो। मॉकिंग करते हो, दूसरे की इंसल्ट करते हो, स्कॉर्नफुल होते हो, ऐसे वाले आपकी सोच होती है, तो आप सिनिकल होते हो। देन एम्बिटर्ड, ठीक है,
मेक बिटर और रिजेंटफुल, रिजेंटफुल का मतलब भी अल्टीमेटली अनोइंग होता है, रिजेंटफुल का मतलब भी ऑल्सो, रिजेंट का मतलब अनोयंस होता है, रिजेंटमेंट जिसे बोलते हैं, तो वो रिजेंटमेंट इज अनोयंस है। अगर मैं लिखूंगा वर्ड तो एग्जैक्टली बनेगा रिजेंटमेंट होता है, उसका मतलब होता है अनोयंस। ओके, ये होता है रिजेंटमेंट। तो वहां पर रिजेंटफुल हो यानी आप बड़े ज्यादा अनॉयड रहते हो। एक्सरबेट करना हो, एक्सरबेट मतलब एक्सरबेट करना होता है टू वर्सन, किसी चीज को और भी खराब करना होता है, यानी बड़े ज्यादा चिड़चिड़े, बड़े ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग के होते हो, एम्बिटर्ड होते हो। देन सस्पिशियस, एप्रीहेंसिव होना, डाउटफुल होना, और ही होना होता है, ये सस्पिशियस होता है। एंड देन वी मीननेस, ग्रीड, मलाइस, डिबेसमेंट, दूसरे के बारे में गलत सोचना हो जाता है। एंड देन क्रुकेड, मैंने बोला था विकेड होता है। अनस्क्रूपलस इज वेरी गुड वर्ड, अनस्क्रूपलस होता है जिसे कहते हैं अनएथिकल काइंड ऑफ पर्सन होता है। फ्रॉडलेंट भी वही होता है जो अनलॉफुल या जो वर्चुअस नहीं होता, उसको क्रुकेड बोलते हैं। यानी हिंदी में आई डू नॉट नो द वर्ड, बट विकेट बोलते हैं उसे। It's not striking in the word, I'm sorry. एंड मॉर्टल मीन्स सब्जेक्ट टू डेथ होता है। जहां पर वर्ड मॉर्ट आता है आप देखेंगे, जहां पर भी वर्ड मॉर्ट आएगा वहां डेथ को इंडिकेट करेगा। मॉर्ट आ जाता है तभी तो आपने मॉर्टल बनाया है, तो वहीं से अगर आपने आई एम लगा दिया तो फिर आपने इमॉर्टल बनाया है, वहीं से आपने वर्ड मॉर्चरी बनाया है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर भी मॉर्ट आ रहा है वहां पर डेथ आ रहा है। और जो भी, जब एम वाले वर्ड के आगे आई एम आ जाता है, आई एम जब भी किसी एम वर्ड के आगे आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या होता है, वो नेगेटिव हो जाता है। अदरवाइज आई एन आता है, आई एन होता है नेगेटिव प्रीफिक्स, इनएक्टिव, इनसेंसिटिव, लेकिन एम वालों के आगे आई एम लगाते हैं, आई एन नहीं लगाते, रूल वही चलेगा। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द वर्ड सिनिकल, एम्बिटर्ड, सस्पिशियस, मीन, क्रुकेड। दिस वर्ड्स वी नीड टू नो एंड नॉट ओनली द वर्ड मीनिंग। अगर आप सिर्फ फील लेकर पढ़ रहे हो तो यू आर नॉट गेनिंग। आई से कि मीन वर्ड का आपको वर्ड मलाइस आना चाहिए, क्रिकेट का वर्ड अनस्क्रूपलस आना चाहिए। एग्जाम में ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, और जब आप लिखते हो तो आपकी राइटिंग स्किल में अनस्क्रूपलस वर्ड होगा, तो आई थिंक द अदर पर्सन विल बी mesmerized कि wow what a thing he has written. आप you is trying to say that you want to aggravate the matter, you are exacerbating the matter, you can say like that only. This kind of word, these kind of words we really need to know. एंड देन वुमेन आर नो डैम गुड, आप मानते हो कि औरतें अच्छी नहीं होती। ऐसा क्यों नहीं होती आप ऐसा मानते हो? क्योंकि समटाइम इन योर डिम पास्ट, यानी पुराने समय में जब आपका बुरा समय था या कहीं गलत टाइम था, यू वर क्रॉस्ड। क्रॉस्ड का मतलब, आप जब ये किसी ने कभी भी किसी ने ये वर्ड पढ़ा है ना, मैंने जब पूछा है कि अच्छा इसका वर्ड का मीनिंग बता दो, तो सब ने बोला कि जी पता नहीं हमें, तो आपने पढ़ा ही नहीं। क्रॉस्ड का मतलब होता है एनॉयड। एक वर्ड होता है वेक्स्ड, वी से होता है, सॉरी, वेक्स्ड हो जाता है, ये वेक्स हो जाता है। क्रॉस्ड होता है, यूवर इरिटेटेड, यूवर अनॉयड। स्कॉर्न मैंने अभी बोला था, हेटेड काइंड ऑफ थिंग। अभी कंटेम्प्ट वर्ड अगर आपने देखा हो तो हमने वर्ड पढ़ा था अभी पिछले स्लाइड में। और डीपली वुंडेड बाय ए वुमन, इफ समवन समटाइम इन योर डिम पास्ट यू वर क्रॉस्ड, ठीक है, यू वर इरिटेटेड, यू वर अनॉयड और स्कॉर्न्ड, हेटेड और डीपली वुंडेड बाय ए वुमन। इट मे बी ए मदर और ए मदर फिगर, परहैप्स कुछ ऐसा हो सकता है। सो नाउ यू हैव अ केयरफुली कंस्ट्रक्टेड डिफेंस अगेंस्ट फर्दर हर्ट। आपने चारों तरफ अपने फोर्ट बना दिए, अब औरतों के पास नहीं जाना चाहते या सबसे दूर रहते, अब कहते हैं यार सब गलत होते हैं। आपके दिमाग में एक इमेज बन गई है, यू हेट ऑल वुमेन। देन वी से दिस इज मिसोजनिस्ट होता है। कुछ लोग इसे मिसोगाइनिस्ट पढ़ते हैं, लेकिन आप इसे मिसोजनिस्ट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। मिसोगाइनिस्ट ही लिखा हुआ है वैसे देखा जाए तो, मिस प्लस गाइनी है, और गाइनी जहां पर वर्ड आएगा वहां पर वुमेन होता है, ठीक है। तो यानी मिसोगाइनिस्ट पढ़ते हैं, लेकिन आप प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ठीक करना चाहें तो मिसोजनिस्ट हो जाता है। अब जैसे कुछ लोग इसे वोमेन पढ़ते हैं, वोमेन ना पढ़ के लोग इंग्लिश में, जो अप्रोप्रिएट इंग्लिश में लोग कहते हैं कि विमेन होना चाहिए। पढ़ते वक्त प्रोनाउंसिएशन हैज टू बी करेक्ट। इफ यू कैन करेक्ट इट, आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। इफ यू आर इंप्रूविंग ग्रेजुअली यू विल इंप्रूव। तो ये विमेन हो गया, वो मिसोजनिस्ट हो जाएगा, यानी हेटर हो जाता है ऑफ वुमेन। तो क्रॉस मैंने लिख ही दिया था आपके लिए वर्ड, स्कॉर्नफुल मैंने बता ही दिया, पीछे वर्ड पीछे भी आए थे अभी थोड़ी देर पहले, मैंने लास्ट स्लाइड में भी लिखा था। यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड
कि स्कॉर्नफुल कौन है, कंटेम्प्टुअस है, डिसडेनफुल है, जो लुक डाउन अपॉन अदर, दूसरों पर करता है, वैसे वाला होता है, स्नेयरिंग होता है, एरोगेंट होता है, दिस काइंड ऑफ पर्सन होता है जो स्कॉर्नफुल होता है। ओके, सिनोनिम यू विल लर्न लाइक दैट एंड देन यू रिलेट कि अच्छा कौन सा पर्सन सिनोनिम है, कौन सा पर्सन स्कॉर्नफुल है। कोई आपका यार दोस्त, कोई ऐसा पर्सन जिसको यू ऑलवेज कम अक्रॉस, जो आपको हमेशा नीचा ही दिखाता है, हमेशा आपकी बातों में गलतियां ही निकालेगा, तो फिर आप समझ जाते हो कि ये पर्सन आपको स्कॉर्न कर रहा है, ये पर्सन ही कंटेम्प्टुअस है, ये वाला होता है। यू सेड समथिंग विद कंटेम्प्ट, आपने सुना हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, वी से लाइक दैट, यानी जहां आप कोर्ट को नीचा दिखा रहे होते हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। आपको देखोगे तो वर्ड दिखने लगेंगे। देन मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन एंड हु वांट्स टू लिव इन एन इंस्टीट्यूशन। भाई हम हमेशा बोलते हैं मैरिज इन इंस्टीट्यूशन। आपने शादी करी तो शादी का आपको बड़ा शौक था, आपने कर ली, लेकिन शादी के बाद एवरी डे यू आर लर्निंग। लर्निंग इन द सेंस कि यार आप पहले फ्री बर्ड थे, आप यारों दोस्तों के साथ घूमते थे, लेकिन अब नाउ यू हैव टू गिव टाइम टू योर वाइफ आल्सो। इफ यू गिविंग टाइम टू योर वाइफ देन यू हैव टू गिव टाइम टू योर पेरेंट्स एज वेल। तो यानी अब आप रोज सीखते हो किसे कैसे सामंजस्य बिठाना है, फिर लाइफ में कैसे करना है। तो लाइफ इज समथिंग, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन एंड हु वांट्स टू लिव इन इंस्टीट्यूशन। आपको ये सारी चीजें बड़ी बंदिश लगती हैं, आप कहते हो यार ये बड़ा बेकार काम है। तो इसका मतलब क्या, यू विल नॉट मेक द अल्टीमेट लीगल कमिटमेंट। आप शादी नहीं करना चाहते, आप लीगली आई डू नहीं कहना चाहते किसी लड़की को कोर्ट में जाकर या चर्च में जाकर, ये शादी नहीं करना चाहते। मेंबर्स ऑफ द अपोजिट सेक्स, आप ऐसा मानते हैं, आर ग्रेड एज लवर्स, रूममेट्स, फ्लैट और हाउस शेयरर्स, यानी लिव इन में आप रह सकते हैं, बट नॉट एज लॉफुली वेडिड स्पाउसेस। स्पाउसेस मतलब पार्टनर, आप लॉफुली वेडिड स्पाउस की तरह नहीं रहना चाहते। The ties that bind are too binding for you. टाइज मतलब जो उसको बांधती हैं, यानी जो इसमें जो बंदिशें हैं वो बहुत ही ज्यादा बंधन वाली हैं, आपको लगता है, आपको ऐसा लगता है। यू मे पॉसिबली बिलीव, आपको ऐसा हो सकता है लगे, एंड पॉसिबली फॉर यूर सेल्फ, सिर्फ अपने लिए क्या हो सकता है, बी राइट, आपके लिए सही भी हो सकता है, दैट ए कमिटमेंट इज डीपर, आप ऐसा कहते हैं, that a commitment is deeper and more meaningful if freedom is available। आप ऐसा मानते हैं विदाउट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। आप कहते हो यार अगर शादी है और उसमें अगर आपकी कमिटमेंट ही इंपॉर्टेंट होती है तो कमिटमेंट बिना शादी के भी तो रखी जा सकती है, लीगल करने की क्या जरूरत है। आपका ये दलील है, आप शादी नहीं करना चाहते, उसके बिना रहना चाहते हो, आपने क्या ये कमिटमेंट करनी है ना कि मैं आपके साथ लॉयल रहूंगा, ये तो इसमें क्या कानून बनाने की जरूरत, क्या शादी करने की क्या जरूरत है। दिस इज योर थिंकिंग। सो इफ यू दैट काइंड ऑफ फेलो देन वी से वो मिसोगैमिस्ट हो जाता है। अगर आप देखोगे तो फिर मिस आ गया और यहाँ पर वर्ड गैमी आ गया। गैमी का मतलब होता है मैरिज, तो यानी आप हेट करते हो मैरिज को, डिसलाइक करते हो। तो आप वो स्पाउस मैंने बोल दिया, पार्टनर होता है, बेटर हाफ वाइफ के लिए यूज करते हैं, हस्बैंड के लिए भी यूज करते हैं। मंत्री जी भाषण दे रहे होते हैं, ही वांटेड टू स्पाउस दिस क्राउड, उसको अपना पार्टनर बना देना चाहते हैं कि आप मुझे वोट डालिए, वहां भी स्पाउस यूज हो जाता है। इट इज नॉट कि सिर्फ यही यूज होगा, स्पाउस मतलब जहां अलायंस हो जाए वैसे वाला स्पाउस होता है। टाइज मैंने लिखा बाइंडिंग्स हो जाती हैं। और जुडिशियल, जुडिशियल मतलब पर्टेनिंग टू जजमेंट इन लीगल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनल, जुरिस्टिक, ये जो होते हैं जुडिशियल होता है। वे जुडिशियल मैटर्स होते हैं ना, तो कोर्ट से रिलेटेड होंगे, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होंगे, लीगल होंगे। लेकिन एक वर्ड होता है जुडिशियस। भाई आप जंक फूड खाते हो या शराब पीते हो या सिगरेट पीते हो बहुत ज्यादा, तो हम कहते हैं यार पियो, मना नहीं है, पेट्रोल चलाना खर्चा करो कोई मना नहीं है, लेकिन इसका जुडिशियस यूज करो, बुद्धिमत्ता पूर्ण जिसे कहते हैं, पागलबंदी वाला नहीं, दिमाग लगाकर। तो वो जुडिशियस होता है, प्रूडेंट जिसे बोलते हैं, वाइज, एस्ट्यूट एंड वेल जज्ड हो जाता है। तो वी शुड मेक अ जुडिशियस यूज ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल्स, यानी पेट्रोल का हमें जुडिशियस यूज करना चाहिए। जहां आप मेट्रो में जा सकते हैं वो कार में मत जाइए, ताकि आपको ये लगे कि मैंने पेट्रोल बचाया है। तो ये जुडिशियस यूज हुआ। ओके, दैट्स व्हाट जुडिशियस होता है। एंड देन द लास्ट वन, इट सेज दैट द फ्लेश इज हेयर टू। हेयर मतलब आप जानते हैं, हेयर जो होता है वो किसी का सक्सेसर होता है, यानी हिंदी में हम इसे वारिस लिखते हैं, उसका सक्सेसर होता है। What do you mean? Like self-denial. This kind of person is self-denial. Whatever desire comes to you, nahi, mujhe nahi karna. You just try to restrict yourself. Austerity. Lonely contemplation. Lonely contemplation, we say.
दीज आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड लाइफ, सो यू क्लेम, आप ऐसा मानते हैं कि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं गुड लाइफ की, ठीक है। सो यू क्लेम द सिंपलेस्ट फूड एंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ इट दैट विल कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, आप सोचते हैं कि छोटा कम खाया जाए और सिंपलेस्ट खाया जाए तो वो बॉडी एंड सोल टुगेदर सर्वाइव करने के लिए काफी होता है। कंबाइंड विद एब्सटिनेंस फ्रॉम फ्लैशली अर्दली प्लेजर्स, एब्सटिनेंस का मतलब अगर आप देखोगे तो एब्सटिनेंस वर्ड हैज कम फ्रॉम द वर्ड abstain, यानी आप दूर रहना समझ रहते हो, फ्रॉम फ्लैशली अर्दली प्लेजर्स, ये दुनियादारी के सुखों से दूर रहना चाहते हो, विल इवेंचुअली लीड टू स्पिरिचुअल परफेक्शन, आपको लगता है कि अगर मैं दुनियादारी के इन अर्दली चीज़ों से दूर रहूंगा तो ये स्पिरिचुअल परफेक्शन को प्रोवाइड कराएगा, आपको आत्मिक शांति मिलेगी, आप स्पिरिचुअल परफेक्शन में चले जाएंगे, दैट इज योर फिलॉसफी। ओके, मीन्स सेल्फ डिनायल, ऑस्टेरिटी, लोनली कंटेम्पलेशन, सोचना आराम से अकेले बैठकर, दीज आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लाइफ, ये आपकी सोच है, ऐसा आप मानते हैं। दी सिंपलेस्ट फूड एंड लीस्ट अमाउंट ऑफ इट, सिंपल फूड और कम से कम खाना, दैट विल कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी वो सर्वाइवल के लिए काफी होता है आपका। ये आप मानते हैं कि बस इतना ही काफी है, इतना ही खाओ जिससे कि हमारा शरीर चल जाए। कंबाइंड विद एब्सटिनेंस फ्रॉम फ्लैशली अर्दली प्लेजर, दुनियादारी के जितने भी शारीरिक सुख हैं इन सब से हटकर, विल इवेंचुअली लीड टू स्पिरिचुअल परफेक्शन, इससे ही आपको स्पिरिचुअल परफेक्शन मिलेगी, आपको ऐसा मानते हैं, दिस इज योर फिलॉसफी। सो आप असेटिक हो जाते हैं, आप कौन होते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, आप सन्यासी होते हैं, आप हर्मिट होते हैं, आप मंक होते हैं, इसको लोग मॉन्क मॉन्क बोल रहे हैं, ये मंक प्रोनाउंसिएशन होता है, याद रखिए, असेटिक होता है। ऑस्टियर, ऊपर आया था वर्ड ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी अगर आप वर्ड को रिलेट करोगे तो यू विल कम टू नो कि ऑस्टेरिटी क्या है। ऑस्टेरिटी मीन्स ऑस्टियर करना, फॉरबिड करना, रिगरसली सेल्फ डिसिप्लिन्ड, सोबर, सोलेम, स्ट्रिक्ट, विदाउट एक्सेसिव लग्जरी, ये ऑस्टेयर होता है। तो यहाँ पर जो वर्ड आया है ना ऑस्टेरिटी, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो वर्ड आ रहा है ऑस्टेरिटी, ये वाला वर्ड, ये ऑस्टेरिटी वर्ड हमने ही ऑस्टेयर से निकाला है। तो ऑस्टेयर पर्सन कौन है, जो फॉरबिड करता है, हर चीज को मना करता है, रिग्रेसली सेल्फ डिनाइल करता है, यानी जो इसके मन में आ रहा था कि यार मुझे, चलिए आपके मन में आया कि रसगुल्ला खाना है, लेकिन वो कहेगा नहीं यार इसको खाने से आदत लग जाती है, नहीं खाना चाहिए। तो ये जो बड़ा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके, सेल्फ डिसिप्लिन रखकर, सोबर रखकर, सोलेम होता है, स्ट्रिक्ट रखता है, विदाउट एक्सेसिव लग्जरी वाला पर्सन ऑस्टेयर होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे ऑस्टेयर और सन्यासी में, असेटिक में फर्क क्या है। असेटिक होता है हु लिव्स अलोन ड्यू टू रिलीजियस पर्पस, अगर आप देखोगे तो मैं इसका मीनिंग लिख देता हूं, अगर आप यहां से देखना चाहते हो तो हम ऐसा मानते हैं कि हु लिव्स अलोन ड्यू टू रिलीजियस पर्सन होता है, टू रिलीजियस पर्पस होता है, सॉरी, मीन्स वो आदमी जो रिलीजियस पर्पस की वजह से अलग रहता है वो असेटिक हो जाएगा, वो सन्यासी हो जाएगा। लेकिन आप फैमिली में रहकर भी ऑस्टियर हो सकते हो, कम से कम में गुजारा करते हो तो ऑस्टियर हो सकते हो, ठीक है। देन कंटेम्पलेट करना होता है, थिंक करना, डीप थिंकिंग, पॉन्डर करना, डेलिब्रेट, म्यूज ओवर इज अ गुड वर्ड विच यू शुड नो, आई से यू मस्ट नो द वर्ड म्यूज ओवर होता है, ओके। देन कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मैंने लिख ही दिया था, एब्सटिनेंस मैंने बोला, रिमेन अवे फ्रॉम लिकर और ड्रिंकिंग और सेल्फ रिस्ट्रेन, एंड अर्दली आई वांटेड से रिलेटिंग टू द अर्थ होता है, अर्दली, आई हैव रिटन द वर्ड डिवाइनली और देन आई हैव रिटन द वर्ड अर्दी, अर्थ से रिलेटेड अर्दली, डिवाइन मतलब जो भगवान से रिलेटेड वो डिवाइनली, देन अर्दी मतलब बहुत ही लो लेवल का, कोर्स, अनडिफाइंड, डल, डाउन टू अर्थ, मुंडेन जिसे बोलते हैं वो वर्ड होता है मंडेन। ये सारे के सारे, कभी आपने सुना है ये अर्दन लैंप्स होते हैं, ये अर्दन पॉट्स होते हैं, इन्हें जो दिया होता है या जो मिट्टी के बर्तन होते हैं अर्दन बोलते हैं, वो अर्दली नहीं होते। अगर अर्दली होगा तो अर्दली मतलब जो अर्थ से रिलेटेड है, अर्थ से रिलेटेड मतलब जितनी भी भोग विलास की चीजें दुनियादारी में वो अर्दली, और डिवाइनली मतलब डिवाइन मतलब गॉड का, तो ये दोनों अर्दली और डिवाइनली, और अर्दी अर्दी मतलब बड़ा कोर्स होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है, आगे समझ, मंडेन भी वही होता है। नाउ ये 10 वर्ड हमने पढ़ लिए। नाउ द राइटर सेज कैन यू वर्क विद दीज वर्ड्स, you have taken 2 long steps towards mastery of the expressive words in this chapter.
Okay, you have thought about the ideas behind them and you have said them aloud. मैं बार बार पूछता हूं कि loud और aloud में फर्क क्या है? She spoke loudly or she spoke aloud? आपको किसी को फोन पर कहना होता है कि जरा ऊंचा बोलिए जरा यार, प्लीज स्पीक लाउडली या स्पीक अलाउड? दैट्स व्हाट वी नीड टू नो। ओके, तो अलाउड, लाउड जो होता है वो शाउट होता है। आप किसी को बोलोगे काइंडली स्पीक लाउडली, तो चिल्ला चिल्ला के बोलना है, नेगेटिव है। यू हैव टू से स्पीक अलाउड मीन्स वोकली ए बिट एट अ हायर पिच, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, आप ये कहना चाहते हैं। तो काइंडली ओवर द फोन व्हेन एवर यू से समवन, आप कहेंगे, आप यू विल हैव टू से काइंडली स्पीक अलाउड। So today what we have done, we have done 10 words, you know, introvert, extrovert and all those things. Okay, we have done those words, and apart from that during the course of teaching I have written a few words there on my screen जो मैंने पेन से आज लिखे हैं, and along with this मैंने अलग से vocabulary bank बनाया which you must know कि यार ये क्या है। तो अगर आप इस सारे वर्ड्स को एक्वायर कर लेते हो, अलग से एक डिक्शनरी बना लेते हो, अपने पास एक रजिस्टर बना लो, उसमें ABCD XYZ करके वर्ड वहां पर लिख लो। दिस मे साउंड सिली फॉर अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट इट विल पे यू इन द लॉन्गर रन। I have tried to explain you the whole session. It must have taken around an hour. But this whole session has not given you only 10 words. This must have given you around 50 more words that you have grabbed. Kindly note them down and revise them time again. Okay, let's meet in the next session with session 2. Thank you very much for watching. God bless you.